Hello everyone, myself Shahim Ayyubi. In today's lecture, we will discuss about mathematical logic. So in mathematical logic, first we discuss about mathematical statement. What are mathematical statement? The statement which has a specific truth value, either true or false. So such statements are called as mathematical statement. Okay. Number first example लेते हैं 2 + 3 that is equal to 5. So the given statement is correct. So therefore it has truth value true. Okay. Next, 5 is greater than 9. Basically 5 is less than 9. Okay, as we know. So 5 is greater than 9. The given statement is wrong. So it has truth value false. Okay. So these true and false are the truth values of these two given statements. Okay, so these two statements have specific truth values, so that's why these statements are called as mathematical statement. Okay, now next, what is open sentence? Open sentence, the sentence which may have or may not have a specific truth value, means true or false. Okay, it changes as per the situation. Okay, the truth value changes as per the situation. So such statements are called as open sentence. Okay, so open sentence क्या, which has neither true or nor false or depend on the situation. For example, it may rain. It may rain, depending on the situation it may be true or false. So it in particular scenario it does not have any specific truth value. Okay, so next one is, what is single statement? Single statement, just for example 2 + 9 that is equal to 11. So the given statement is correct, so therefore it has truth value true. Now another single statement, 13 - 4 that is equal to, given is 8. So in this statement it is given as 8, but basically it is 13 - 4 that is equal to 9. Okay, so correct statement answer is 9, but here in the given statement answer is 8. So this statement has truth value false because this is wrong statement. Okay, so here that truth value of the given statement is false. Okay, now these are the single statement. What are compound statement, or what is compound statement? Two or more statements combined by or joined by logical connectives. Okay, two or more statement, two or more statements which are joined or combined by logical connectives to form a single statement or compound single statement, then it is called as compound statements. Okay, so what are the logical connectives? Logical connectives, 5 logical connectives हैं आपके. Number first is conjunction. Conjunction, it is basically, और and कहा जाता है इसको, conjunction को and से represent करते हैं, symbol रहेगा ये. Okay, now what is disjunction? डिसजंक्शन, और से और कहते हैं उसको, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से. ओके, नेक्स्ट है निगेशन. निगेशन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके के सिंबल से इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन इफ और देन के ब्लॉक को लिया जाता है. इम्प्लीकेशन सिंगल डायरेक्शन एरो ली जाती है इम्प्लीकेशन के लिए. एंड नेक्स्ट है डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ, इंग्लिश में इसको यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में, और इसको आप डबल डायरेक्शन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इसको डबल डायरेक्शन एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो दीज 5 आर द लॉजिकल कनेक्टिव. ओके, सो हियर वन बाय वन हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स को इन डिटेल स्टडी करते हैं विथ ट्रूथ टेबल एंड द रूल. ओके, सो हियर डिस्कस करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स को in detail. Okay, so the next topic is logical connectives. Okay, so now we discuss about conjunction in detail. Okay, so conjunction, here the symbolic representation and, okay, in English and को represent किया जाता है conjunction के तौर पर. Okay, so and is represented as conjunction. Okay, so two statement. Statement number 1 is P. Statement number 2 is Q. The two statements are combined or joined by and. Okay, conjunction. Okay, so it is symbolically represented as P and Q, and in words it is read as P and Q. Okay, so it is read by P and
Q. Okay, here rule. What is rule? If both the two given statements are true and they are joined by conjunction, then the truth value of resultant is true. Okay, if both statements are true, then the truth value is resultant statement की वो true रहेगी. Otherwise सारे cases में false. अब कौन कौन से cases? If both are false, if either one of the two is false. Okay, so in such cases में truth value क्या आएगी? False. So basically हम लोग सिर्फ rule याद रखते हैं कि T and T that is equal to T. Otherwise false. Okay, so here next one is truth table. Truth table हम लोग बोलते हैं the possible combinations of truth values of the given statement and their resultant output. Okay, their resultant output truth value. Okay, so इसको हम लोग प्लॉट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल. सो दिस टेबल इज कॉल्ड एज ट्रूथ टेबल. सो टू स्टेटमेंट्स हैं. नंबर वन इज P, नंबर सेकंड इज Q. सो P की ट्रूथ वैल्यू रहेगी 2T 2F. ओके, T F F. ओके, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स. Q की स्टेटमेंट रहेगी, इनको हाफ करना है, TF TF. ओके, सो हियर बेसिकली एक फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करेगा. सो फॉर्मूला इज 2n. यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ रोज. ओके, नंबर ऑफ रोज. ओके, नंबर ऑफ रोज. सो n जो रहेगा वो रहेगा आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. सो हियर हम लोग 2 स्टेटमेंट लेते हैं. सो 2 दैट इज इक्वल टू 4. सो 4 को हम लोग स्प्लिट करेंगे 50%, 50-50 मीन्स 2T 2F. एंड Q के लिए हम लोग इसको भी 50-50% में रिप्रेजेंट करेंगे. मीन्स 2T यहाँ ब्रेक होगा T एंड F में, एंड 2F ब्रेक होगा T एंड F में. ओके, सो इस तरीके से ये ट्रूथ टेबल की इनिशियल कॉलम्स प्लॉट किए जाते हैं. अब नाउ हम लोग रूल फॉलो करते हैं. व्हाट इज द रूल? T एंड T दैट इज इक्वल टू T. ओके, सो यहाँ पर T एंड T दैट इज इक्वल टू T लिखेंगे. फर्स्ट T सेकंड T दोनों T है. अब चेक करेंगे दोनों T हैं क्या? नहीं. सो देयरफॉर इसको प्लॉट करेंगे F. ओके, सो ये आपका बन जाएगा ट्रूथ टेबल फॉर द कंजंक्शन. ओके, सो ट्रूथ टेबल फॉर द कंजंक्शन. नेक्स्ट वन इज डिसजंक्शन. ओके, डिसजंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है दिस सिंबल से, और इंग्लिश में और जो है वो डिसजंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे. स्टेटमेंट नंबर 1 P, स्टेटमेंट नंबर 2 Q, बोथ आर ज्वाइंड और कंबाइंड बाय डिसजंक्शन और. ओके, सो P और Q, इट इज symbolically represented as P or Q, and it is written as or read by P or Q. read as P or Q. ठीक है. रूल यहाँ पर क्या कहता है? F or F, if both the statements are false, then the resultant is also false. Okay, so F or F that is equal to F. In all other scenarios the truth value is true. Okay, if both the statements are false, then that is given the combined truth value is false, otherwise it is true. Okay, so truth table यहाँ पर प्लॉट करते हैं. P के लिए रहेगा 2T 2F, Q के लिए रहेगा TF TF. अगेन सेम रूल, 2 स्टेटमेंट्स हैं, 4 पॉसिबल नंबर ऑफ रोज रहेगी, 4 पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स बनेंगे. ओके, सो 4 को हम लोग ब्रेक करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए 50-50 यानी हाफ हाफ, तो 2T 2F. ओके, एंड Q के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट को भी हाफ हाफ में ब्रेक करेंगे TF एंड TF. ओके, सो नेक्स्ट P और Q क्या रहेगा? सो रूल देखेंगे F और F. इफ बोथ आर फॉल्स देन द रिजल्टेंट इज फॉल्स. सो चेक करेंगे बोथ आर फॉल्स यहाँ है, सो ये बोथ आर फॉल्स, रिजल्टेंट इज ऑल्सो फॉल्स, अदरवाइज सारा स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू. ओके, सो ये बन जाएगा ट्रूथ टेबल. दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन. ओके, नेक्स्ट वन इज निगेशन. ओके, सो निगेशन ये सिंबल रहेगा जिससे निगेशन को आप रिप्रेजेंट करोगे. इंग्लिश में नॉट निगेशन को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, यहाँ पर आप इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो निगेशन ऑफ P से, और इसको रीड किया जाता है निगेशन ऑफ P या निगेशन P के जैसा. ठीक है, रूल यहाँ पर क्या कहता है? इफ ट्रूथ वैल्यू सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, सिंगल स्टेटमेंट रहेगी, सो यहाँ पर 2n की जगह 1 रखेंगे. नंबर ऑफ स्टेटमेंट चूँकि 1 है तो पॉसिबल इनपुट्स क्या मिलेगा? 2. सो 2 मिलता है, इसलिए यहाँ पर एक ट्रू रहेगा एक फॉल्स रहेगा. ओके, सो
इस पर आते हैं, फर्स्ट रूल देखते हैं। रूल क्या है? निगेशन ऑफ टी, यानी ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर इस गिवन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू, इफ द गिवन स्टेटमेंट हैज़ ट्रूथ वैल्यू ट्रू, देन निगेशन ऑफ पी इसका फॉल्स बनेगा। एंड इफ द गिवन स्टेटमेंट हैज़ ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, देन निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको इन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। सो ट्रूथ टेबल हम लोग इसका प्लॉट करेंगे। P सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स मिलेंगे 2, एक 1 हो जाएगा T, एक हो जाएगा फॉल्स। 2 को 50-50 करेंगे, 1T 1F। ओके, सो निगेशन P ट्रू, निगेशन ऑफ T अगर हम लोग करेंगे क्या मिलेगा? फॉल्स। इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा T का F, और F का क्या हो जाएगा? T। ओके, सो ये बनता है आपका ट्रूथ टेबल ऑफ निगेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन इम्प्लीकेशन का। Here we discuss about implication. What is implication? So implication को represent किया जाता है this symbol. Okay, the symbol for implication is single directional arrow. Okay, English में if then इसमें लिखा जाता है if statement number 1 means P and then statement number 2 means Q. ओके, सो ये रहेगा, इसको लिखा जाता है सिम्बॉलिकली P implies Q, और इसको पढ़ा जाता है P implies Q. It is read as P implies Q. ओके, सो हियर रूल क्या कहता है? इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू मीन्स P ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, एंड दे आर ज्वाइंड बाय इम्प्लीकेशन. Okay, so the resultant statement has truth value false. Okay, otherwise all other scenarios में statement की truth value compound statement की truth value मिलेगी true. Okay, so first statement true and the next statement जो second statement है वो false होना चाहिए, दोनों implication से joined है, so T implies F बनेगा F, otherwise all other scenarios में ये हो जाएगा true. Okay, so here truth table बनाते हैं। अगेन PQ 2 स्टेटमेंट्स हैं जो इम्प्लीकेशन से ज्वाइन किए गए हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं इम्प्लीकेशन के लिए। ओके, सो क्या कहता है रूल? T implies F, सो सर्च करेंगे T, इन दोनों में T, ये दोनों में है। ओके, सो F यहाँ पर रहेगा। ओके, T implies F, सो T implies F रूल यहाँ पर ओबे हुआ F, अदरवाइज बाकी के सारी जगहों पर कॉम्बिनेशन पे आपको T लिखना है। सो ये रहेगा T, ये रहेगा T। ओके, सो ये बन जाएगा आपका ट्रूथ टेबल। ओके, नेक्स्ट डबल इम्प्लीकेशन। सो डबल इम्प्लीकेशन क्या रहेगा? इफ एंड ओनली इफ के लिए। ओके, सो इफ एंड ओनली इफ बाय डायरेक्शनल एरो, टू डायरेक्शनल एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सिम्बॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P डबल इम्प्लाइज Q. ओके, सो इट इज रीड एज P डबल इम्प्लाइज Q. ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय symbolically P double implies Q and it is read as P double implies Q. रूल यहाँ पर कहता है T double implies T means if both the given statements are true and if both the given statements are having truth value false. Okay, if both are true, if both are false, then the resultant statement has truth value true. Okay, otherwise all other scenario में false रहेगी। means अगर similar truth values हैं ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स एंड दे आर ज्वाइंड बाय डबल इम्प्लीकेशन, सो ट्रूथ वैल्यू मिलेगी ट्रू, अदरवाइज ऑल अदर सिनेरियो में ट्रूथ वैल्यू मिल जाएगी फॉल्स। मीन्स क्या? अगर मिक्स है, एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू, सो इस सिनेरियो में आपको ट्रूथ वैल्यू मिलेगी फॉल्स। ओके, सो हियर ट्रूथ टेबल अगर हम लोग बनाते हैं डबल इम्प्लीकेशन के लिए P डबल इम्प्लाइज Q. ओके, सो हियर T डबल इम्प्लाइज T आपको मिलेगा T रूल के अकॉर्डिंग। ओके, एंड F डबल इम्प्लाइज F, ये भी मिलेगा ट्रू, अदरवाइज F। ओके, मिक्स है सो F मिलेगा। ठीक है, सो इम्प्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कंडीशनल। ओके, सो इम्प्लीकेशन इज कॉल्ड एज कंडीशनल एंड हियर डबल इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज biconditional. Okay, so here implication is also called as conditional and double implication is called as biconditional. Okay, so here हम लोग स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को।